Hello everyone, welcome to Dikshan's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 2 and the name of our topic is bees. And this is our chapter 5 and this is part 1. तो आज का जो हमारा टॉपिक जो है उनका नाम क्या है? बीज यानी कि भमरा, है ना? सबको पता ही है भमरा क्या है ना? तो बी और ये जो है हमारा चैप्टर 5 और आज का जो हमारा पार्ट है वो क्या है, वो हमारा पार्ट 1 है, ठीक है? तो बी, अब बी सबने देखा ही है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसने बी नहीं देखा है। एंड हमने हनी बी भी खाया ही है, यानी कि बी का क्या है? हनी बी की सेहत बहुत अच्छा होता है, बहुत स्वीट होता है, उसमें हमें शक्कर भी नहीं डालना पड़ता है। Whereas अगर हम कभी कॉफी पीते हैं या फिर चाय पीते हैं तो हम वहां पर उसे स्वीट बनाने के लिए हम उसमें शक्कर डालते हैं, इवन जूस में, है ना? अगर जब हम जूस पीते हैं तब भी हम वहां पर क्या करते हैं कि वहां पर हम शक्कर डालते हैं उसको स्वीट बनाने के लिए। पर हनी ऑलरेडी बहुत स्वीट होता है और हनी जो है हमें कहाँ से मिलता है? वो बीज से मिलता है, ठीक है? और ये जो बी जो हनी बनाते हैं, जो हम खा लेते हैं, एंड हनी जो होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, आपने शायद याद किया होगा, है ना? चीप नहीं होता, बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि इसी हनी को बनाने के लिए बी को बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कसरत करना पड़ता है। अब कैसे, है ना? एंड अभी तक हमने सिर्फ बी देखा है दूर से एंड हनी देखा है, पर वो कैसे बनाए जाते हैं, है ना? और उसका जो बी का जो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है ना? तो हम आज के क्लास में पूरा सिर्फ बी के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है? क्या है हमारा? बीज। तो बी तो बीज जो है वो ऐसा होता है देखने में, है ना? आप लोगों ने देखा भी है। वैसे तो बीज का बहुत ज्यादा क्या होता है, इसका वैरायटी होता है, बहुत प्रकार के होते हैं बी, पर उसमें चुनिंदा बी होता है जो हम लोग को हनी देता है। ऐसा नहीं कि जहां पर आपने बी देखा अब वो हनी देगा, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा स्पीसीज होता है, बहुत ज्यादा प्रजाति होता है, उसमें से सिर्फ चुनिंदा बी ही हम लोग को हनी देता है, ठीक है? एंड यहाँ पर जो बी जो हमें हनी देता है उनके बारे में हम देखेंगे। सो नाउ गेट सेट। सो नाउ स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, बिकॉज वी ऑल हैव टू इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल। प्रोनाउंसिएशन अच्छा करना है इसीलिए, ठीक है? So everybody open your book and let's read with me. So let's start. Do you know me? I'm B. Full stop, यानी कि थोड़ी देर के लिए आप लोग को रुकना है। I make honey for you. So they call me honey bee. Full stop है। So थोड़ी देर के लिए आप लोग को रुकना है। I have to work very hard. I never sit idle. People call me the busy bee. Okay? So let's read once again this paragraph. Do you know me? I'm bee. I make honey for you. So they call me honey bee. I have to work very hard. I never sit idle. People call me the busy bee. My body has 3 main parts. Number 1, the head. Number 2, the midsection or the thorax. Number 3, the back section or the abdomen. Let's read once again. My body has 3 main parts. Number 1, the head. Number 2, the midsection or the thorax. Number 3, the back section or the abdomen. Next, the head has eyes, feelers and mouth. The thorax has wings and legs. The abdomen has a sting at the end. I have 6 legs and 2 tiny wings. You can hear my buzz when I
fly. So now let's read once again. The head has eyes, feelers and mouth. The thorax has wings and legs. The abdomen has a sting at the end. I have 6 legs and 2 tiny wings. You can hear my buzz when I fly. So next, I have a sting, but I do not hurt anyone. I use my sting on those only who tease me. But I feel very sad when I sting someone. I die soon after. Let's do this again. I have a sting, but I do not hurt anyone. I use my sting on those only who tease me. But I feel very sad when I sting someone. I die soon after. Next one. I love flowers. I fly from flowers to flowers. I collect their sweet juice. This juice is called nectar. It is very sweet. I store it in my house. After some, the nectar changes into honey. This honey is my food. It is for you also. Okay, let's read once again. I love flowers. I fly from flowers to flowers. I collect their sweet juice. This juice is called nectar. It is very sweet. I store it in my house. After some, the nectar changes into honey. This honey is my food. It is for you also. Next, my house is very big. It is called a beehive. It has many tiny rooms. Each room is called a cell. I live in my house with the other members of my family. Our family is very large. It has many thousand members. Okay, let's read once again. My house is very big. It is called a beehive. It has many tiny rooms. Each room is called a cell. I live in my house with the other members of my family. Our family is very large. It has many thousand members. Now next slide. All the members of our family work very hard. We do all the work together. We make our house and look after it. We protect it from enemies. Okay? Look how hard we work to make 1 little spoon of honey. We have to visit 4,000 flowers. Our king and queen also live with us. The drone is our king. He is very fat. He does nothing all day. He remains idle. The queen also remains idle. She lays eggs only. Okay? Let's do it once again. Look how hard we work to make
1 little spoon of honey. We have to visit 4,000 flowers. Our king and queen also live with us. The drone is our king. He is very fat. He does nothing all day. He remains idle. The queen also remains idle. She lays eggs only. So now, this much. Okay? So, honey. है ना, यानी कि हनी सबने खाए हैं, है ना, बहुत अच्छा होता है, स्वीट होता है। और नीड देने वाला कौन है? हमारा बीज। सो अब यहाँ पर हनी किस तरह से बनाए जाते हैं, एंड बी हाइव क्या है, एंड बी हाइव में क्या क्या होता है ना, एंड क्वीन को, एंड यहाँ पर जो बी का जो क्वीन कैसा होता है, एंड किंग कैसा होता है, एंड वॉकर बी कैसा होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। डू यू नो मी? अब यहाँ पर जब हम ये स्टोरी पढ़े, यहाँ पर मी एंड आई बहुत सारा हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मी एंड आई यानी कि मैं नहीं हूं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है डू यू नो मी, यानी कि यहाँ पर जो बताया गया है ना, वो मैं, ये मैं नहीं पूछेगी कि आप मुझे पहचानते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पूरा स्टोरी जो है वो किसने बताया है? यहाँ पर बी ने बताया है खुद के बारे में। वो क्या करता है, वो कहाँ पर रहता है, उन लोग का घर कैसा है, किंग कौन है, क्वीन कैसा होता है ना, और ये जो है अनहानी किस तरह से बनाए जाते हैं। यहाँ पर पूरा जो है स्टोरी जो है आई यानी कि, और यहाँ पर मी यानी कि यहाँ पर क्या है? बी से, यानी कि हम नहीं है, यानी कि पूरा स्टोरी जो है वो बी बता रहा है हम लोग को। ठीक है, सुनाओ, डू यू नो मी, यानी कि बी बता रहा है कि आप मुझे पहचानते हो। आई एम बी, यानी कि मेरा नाम क्या है? बी। आई मेक हनी फॉर यू, यानी कि मैं आप लोग के लिए क्या बनाती हूँ? शहद बनाती हूँ। सो दे कॉल मी हनी बी, तो मेरा नाम क्या है? बी है, मेरा नाम क्या है? बी। पर मैं आप सबके लिए क्या बनाती हूँ? हनी, तो इसलिए लोग मुझे क्या बुलाता है? हनी बी, यानी कि दो वर्ड को जोड़ के बन गया मेरा नाम हनी बी। ठीक है, आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड, आई नेवर सिट आइडल, आइडल यानी कि मुड़द जैसा मैं चुपचाप से नहीं बैठती हूँ, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, पीपल कॉल मी द बिजी बी, इसीलिए सब लोग मुझे कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, और बिजी बी भी कहता है, मैं बहुत बिजी होती हूँ, मेरे पास फुर्सत नहीं होता है, तो इसलिए मुझे बिजी बीबी बुलाते हैं, क्योंकि मैं बहुत बिजी होता हूँ। शायद आप लोग ने एक कहावत सुना भी होगा, एज स्वीट एज हनी, है ना, यानी कि कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत प्यार से बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? और तुम तो कितना स्वीट हो, एज स्वीट एज हनी, है ना, ये सब बोलते हैं, क्योंकि एज स्वीट एज हनी यानी कि स्वीट जो हनी इतना मीठा होता है और तुम्हें वैसे ही मीठे हो, ये है। एंड एक कहावत भी है, एज बिजी एज बी, यानी कि अगर कोई जो है कि बहुत बिजी रहता है तो हम लोग कहते हैं ना, यू आर सो बिजी एज बी, है ना, बीच जैसे तुम बहुत बिजी एज बी, यानी कि भमरा जैसे काम करने के बाद बहुत बिजी होता है, एंड जो लोग बहुत बिजी होता है ना उसको हम बी बोलते हैं, एंड जो बहुत स्वीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा जो क्या है हनी जैसे, एज स्वीट एज हनी। तो एक कहावत है, क्योंकि हनी जो है वो बी प्रोड्यूस करता है तो उसे हम हनी भी बोलते हैं, और बहुत मीठा होता है। एंड ये जो बी होता है बहुत मेहनत करता है, वो बहुत बिजी होता है, तो उसे हम बिजी बी भी बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, अब हम बॉडी पार्ट्स के बारे में देखेंगे बी का। ठीक है, माई बॉडी हैज 3 मेन पार्ट्स, और यहाँ पर बी क्या बताया हम लोग को कि मेरा बॉडी पार्ट जो है वो 3 बॉडी पार्ट्स है। नंबर 1 में आएगा मेरा हेड पोर्शन, नंबर 2 में आएगा मिड सेक्शन और द थोरैक्स। अब एक है हमारा हेड और एक है मिड सेक्शन, और आएगा हमारा बैक सेक्शन और द एब्डोमेन, तो ये हमारा बैक सेक्शन आएगा, यानी कि मेरा बॉडी जो है वो 3 भाग में डिवाइड हुआ है, ये कह रहा है हमारा हनी बी। ओके, और 3 भाग में सबसे पहला कौन सा भाग है? हेड, उसके बाद आएगा थोरैक्स, और उसके बाद आएगा एब्डोमेन। ठीक है, सुनो, मिड सेक्शन को हम थोरैक्स से बोलते हैं, एंड बैक सेक्शन को हम एब्डोमेन बोलते हैं, क्योंकि मिड सेक्शन बीच में है, हेड सबसे आगे, और बैक सेक्शन यानी कि पीछे, जहां पर क्या है हमारा एब्डोमेन। ओके, तो इस तरीके से मेरा पार्ट जो बॉडी पार्ट जो 3 भाग में डिवाइड हुआ है, ये कहा है। सो नेक्स्ट,
अब हम वन बाय वन के देखेंगे, हेड में क्या होता है, बैक सेक्शन में क्या होता है एंड मिड सेक्शन में क्या क्या होता है। सो द हेड हैज आईज, फीलर्स एंड माउथ। तो मेरा हेड सेक्शन में क्या है, हेड है, आईज है और मेरा फीलर्स भी, यानी कि जिससे मैं क्या, फीलर से क्या करता है बी, वो जब फ्लावर्स में जाते हैं जूस लेने के लिए तो इसी फीलर से वो सक करते हैं जूस, ठीक है। द थोरैक्स हैज विंग्स एंड लेग्स। तो जब हम मिड सेक्शन में जाते हैं जिसे हम थोरैक्स बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक, वहां पर क्या है मेरा पंख है ना, छोटा छोटा पंख, अब उतना बड़ा भी नहीं, छोटा होता है ना भमरा का पंख, छोटा छोटा पंख और छोटा छोटा सा लेग है मेरा, कहां पर है, थोरैक्स और मिड सेक्शन में। द एब्डोमेन हैज अ स्टिंग एट द एंड। और मेरा जो एब्डोमेन है बैक साइड में, वहां पर मेरा क्या है, मेरा स्टिंग है यहाँ पर एंड में। अब स्टिंग का क्या है, काम क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा हनी बी का बॉडी पार्ट 3 भागों में डिवाइड हुआ है, उसमें से सबसे पहले क्या है हमारा हेड, और उसके बाद मिड सेक्शन और थोरैक्स, जहां पर हमें छोटा छोटा सा बी का पंख देखने को मिलता है एंड उसका लेग्स देखने को मिलता है, और बैक सेक्शन जिसे हम एब्डोमेन बोलते हैं, वहां पर हमें स्टिंग जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। सो लेग्स के बारे में बात करते हैं तो बीज का कितना लेग्स है, आई हैव 6 legs and 2 tiny wings। यानी कि छोटा छोटा सा 6 legs है और 2 tiny wings है। अब कहां पर है वो, थोरैक्स और मिड सेक्शन, थोरैक्स को हम मिड सेक्शन में बोलते हैं। सो लेग्स एंड विंग्स जो है थोरैक्स यानी कि मिड सेक्शन में है, ठीक है। यू कैन हेयर माई बर्ड्स व्हेन आई फ्लाई। यानी कि जब भमरा जो उड़ता है तो हमें सुनाई देता है ना वो कर रहे वो आवाज, उसी बोलते बर्ड्स। यानी कि जब भमरा अंदर आता है तो हमें सुनाई देता है कि अब हाँ भमरा आया है, कि भमरा का जो आवाज होता है भू करने वाला, उसे हम पता चलता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर्ड्स। जैसे कि जब मच्छर आता है तो मच्छर का आवाज हमें पता चलता है ना, मच्छर क्या है, भमरा क्या है। तो भमरा का साउंड जो है मच्छर से सेम नहीं होता है, अलग होता है, जिसे हम इंग्लिश में बर्ड्स बोलते हैं। और बर्डिंग कब करता है भमरा, जब वो उड़ता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, I have a sting but I do not hurt anyone। तो स्टिंग कहां पर है, हनी का, बी का, हनी बी का यहाँ पर है, नीचे पार्ट है, एब्डोमेन पार्ट में स्टिंग, पर ये जो स्टिंग से मैं किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाती हूँ। हर्ट का मतलब है तकलीफ पहुंचाना, ठीक है। अब मेरे पास स्टिंग तो है पर मैं किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाती हूँ। I use my sting on those only who tease me। tease यानी कि चिढ़ाना, ठीक है। एंड कि ये जो मेरे पास एब्डोमेन एरिया में स्टिंग तो है पर मैं किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाती हूँ, बस उनको ही पहुंचाती हूँ कि जो मुझे चिढ़ाता है, सिर्फ उनको ही मैं तकलीफ पहुंचाती हूँ। But I feel very sad when I sting someone। पर अगर मैं स्टिंग से किसी को काटती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सबको काटता फिरता हूँ, पर मैं उससे कोई काटती हूँ जो मुझे बहुत तंग करता है, चिढ़ाता है, बस उनको ही मैं काटती हूँ। पर मुझे कोई भी खुश नहीं है कि किसी को काटने से मुझे खुश नहीं मिलता है, मैं बहुत दुखी होती हूँ। क्यों, I die soon after। यानी किसी को काटने के बाद हनी बी जो है वो भी मर जाती है, इसीलिए उसे बहुत खुशी नहीं मिला है किसी को उसको तकलीफ देने में, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, I love flowers। यानी कि हनी बी को फूल बहुत पसंद है। I fly from flowers to flowers, I collect the sweet juice, this juice is called nectar। यानी कि जो फीलर से क्या करता है, वो लोग फ्लावर बहुत पसंद है हनी को, है ना, एक फ्लावर से लेके दूसरे फूल तक वो जाते हैं एंड वहां पर जो स्वीट जूस होता है फूल का, है ना, वो लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। और इस जो स्वीट जूस होता है फ्लावर्स का, उसे हम क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और नेक्टर बहुत स्वीट होता है और ये नेक्टर जो है लेके जाता है बी, और उसके बाद क्या करता है, आई स्टोर इट इन माई हाउस। और ये जो नेक्टर जो है ले जाके जो हनी बी जो होता है अपने घर पर रखता है, स्टोर करता है, वो नहीं खाता है पर पहले रखता है उसे। आफ्टर सम द नेक्टर चेंजेस इनटू हनी। और उसे रखने के बाद धीरे धीरे वो जो हनी जो है पहले स्वीट होता है, बहुत स्वीट होता है, अब रखने के बाद वो हनी में कन्वर्ट जाता है, वो जो और भी ज्यादा मीठा होता है, ठीक है। This honey is my food, it is for you also। और ये हनी जो है वो मेरा खाना है। तो हनी बी का खाना क्या है, हनी, और मेरा खाना तो है पर आप सब के लिए भी है, क्योंकि हम लोग भी तो हनी खाते हैं, बहुत पसंद है,
है ना, अनहेल्दी भी होता है हनी। तो यहाँ पर जो हनी जो है कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो बी जो है एक फूल से लेके दूसरे फूल में जाके वहां का जो स्वीट जूस जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसे हम नेक्टर बोलते हैं, और वो स्वीट होते हैं। और वो जो नेक्टर जो ले जाके हनी बी अपने घर पर रखता है, पहले नहीं खाता है, वो रखता है, और रखने के बाद आफ्टर सम टाइम वो हनी में कन्वर्ट होता है, जो हनी बी भी खाता है और हम लोग भी खाते हैं। एंड हेल्थ के लिए भी हनी बी जो है, हनी जो है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, माई हाउस इज वेरी बिग। एंड कि हमने अभी बताया कि जो नेक्टर जो होता है उसे ऑब्जर्व करने के बाद, है ना, हनी जो है ले जाके अपने घर पर रखता है। अब हनी बी का घर कैसा है वो देखेंगे। ठीक है, हनी बी का घर जो है वो बहुत बड़ा होता है, इट इज कॉल्ड अ बी हाइव। तो हनी बी का घर जो होता है उसे हम बी हाइव बोलते हैं, और बहुत बड़ा होता है, जिसके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत बड़ा है घर। अब इस घर में कितना कितना बी है वो देखेंगे हम। ठीक है, ईच रूम इज कॉल्ड अ सेल, यानी कि हनी बी का इतना बड़ा सा है ना, एंड ईच रूम का हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। टाइनी टाइनी रूम्स होता है, इट हैज वेरी टाइनी रूम्स, यानी बहुत टाइनी रूम्स होता है, एंड रूम्स जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा है, बहुत सारा हमें हनी का देखने को मिला। रूम्स ऐसा होता है, छोटा छोटा होता है ना, कैसा होता है, छोटा छोटा ऐसा होता है। बी हाइव में हनी का, बी हाइव में हनी बी का रूम बहुत सारा ऐसा होता है, ऐसा होता है, छोटा छोटा बहुत सारा रूम होता है, टाइनी। अब यहाँ पर मैंने बड़ा बड़ा बना लिया, बट एक्चुअली बहुत छोटा छोटा ऐसा ही रूम होता है, बहुत सारा होता है, एक या दो नहीं, बहुत सारा होता है, क्योंकि घर जो है वो बहुत बड़ा है इसीलिए। ठीक है, और ये जो रूम जो उसे क्या बोले जाते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। I live in my house with other members of my family। यानी कि हनी बी में जो बीहाइव जो है वहां पर सिर्फ एक ही हनी नहीं रहते हैं, बहुत सारा रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स हैं। एंड आवर फैमिली इज वेरी लार्ज। और यहाँ पर हनी बी क्या बता रहे हैं कि मेरा फैमिली जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए तो बहुत बड़ा घर भी है हम लोग का। ठीक है, इट हैज मेनी थाउजेंड मेंबर्स। और यहाँ पर सिर्फ एक या दो लोग या फिर 100 या फिर 200 नहीं है, बहुत थाउजेंड्स में है मेरा घर का मेंबर। और सब लोग काम रहता है एक बहुत बड़ा सा घर, और इस घर में बहुत टाइनी टाइनी रूम्स है, एंड इच रूम को क्या बोले जाते हैं, सेल। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन, ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली वर्क वेरी हार्ड। एंड सिर्फ मैं ही नहीं, पर मेरा जो फैमिली मेंबर्स यानी कि पूरा बी जो है सब मेहनत करता है, सिर्फ मैं ही मेहनत नहीं करती हूँ, सब मेहनत करता है। एंड we do all the work together। और हम एक साथ काम करते हैं, आगे पीछे नहीं, सब एक साथ ही काम करते हैं, सिर्फ नहीं नहीं, सब। ठीक है, we make our house and look after it। और हम लोग हमारा घर इतना बड़ा सा, ये जो घर आप लोग देख सकते हैं, ये सेल है, रूम है, जिसे हम सेल बोलते हैं, है ना। हम इतना बड़ा सा घर बीहाइव जो है बनाते हैं, पर हम उसको ख्याल भी रखते हैं, उसको देखते भी है। और जब भी कोई भी दुश्मन बाहर से आएगा, एनिमीज यानी कि दुश्मन, है ना, यानी कि वी प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमीज, यानी कि कोई बाहर से दुश्मन आएगा तो उससे हम हमारे घर को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, हम लोग साथ मिलके, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स मिलके। ठीक है, सो लुक हाउ हार्ड वी वर्क। देखिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं, है ना, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि हनी यानी कि हनी बी जो होता है बहुत मेहनत करते हैं। अब हनी तो हम खाते हैं, सेहत बहुत अच्छा होता है, पर वो कैसे बनाए जाते हैं वो भी हमने देखा, नेक्टर से यानी कि फ्लावर से निकाल के उसको रख के, है ना, तब जाके हमारा हनी बनता है। पर क्या है कि टू मेक 1 लिटिल स्पून ऑफ हनी वी हैव टू विजिट 4000 फ्लावर्स। यानी कि हनी बी को एक सिर्फ छोटा सा चम्मच हनी बनाने के लिए उन लोग को 4000 फूल, 4000 फूल के पास जाके उनका जो नेक्टर जो है वो उन लोग को ऑब्जर्व करवाता है। यानी कि एक भी नहीं, 2 फ्लावर बहुत सारे, इसलिए तो हनी बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि बनाने में इतना ज्यादा मेहनत लगता है हनी बी को, इसलिए हनी जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है। यानी कि सिर्फ एक छोटा सा चम्मच जो है वो हनी बनाने के लिए हनी को, है ना, हनी बी को तकरीबन 400 फ्लावर्स के पास जाना पड़ता है। ठीक है, पर हनी जो होता है, हनी बी जो होता है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या है,
Our king and queen also live with us. यानी कि हनी बी जो होता है ना वो 3 होता है। एक हो रहा हमारा वॉकर बी, यानी कि जो बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है, 400 फ्लावर्स के पास जाके वो नेक्टर एब्जॉर्ब करके हनी बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है वॉकर बी। और उसके बाद आता है हमारा ड्रोन, और उसके बाद आता है हमारा क्वीन। और ड्रोन कौन है वो देखेंगे। द ड्रोन इज आवर किंग, यानी कि किंग को क्या बोले जाते हैं, ड्रोन। ठीक है, ही इज वेरी फैट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ड्रोन कितने फैट है ना, यानी कि हनी बी का जो किंग जो होता है बहुत फैट होता है। He does nothing all day, यानी कि हम लोग तो बहुत मेहनत तो करते हैं, पर हमारा किंग यानी कि ड्रोन जो है वो कुछ नहीं करता है दिन भर। He remains idle, यानी कि मूर्ख जैसा वो चुपचाप से बैठा रहता है, पर हम लोग मूर्ख जैसा नहीं बैठे, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। The queen also remain idle, she lays egg only। और क्वीन जो है वो भी कुछ काम नहीं करती, सिर्फ चुपचाप से idle यानी मूर्ख जैसा बैठा है, पर वो अंडा देती है। तो ये रहा हमारा लाइफ ऑफ हनी बी। सो यानी कि बी को हम क्या भी बोलते हैं, बी को हम हनी बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हनी बी। क्यों, क्योंकि हनी बी हम लोग को हनी देता है इसलिए। अब बी जो है बहुत बिजी होता है, क्या होता है, बहुत बिजी होता है, तो इसलिए हम हनी बी को हम बिजी बी भी बोलते हैं। बहुत बिजी होता है ना, इसलिए बिजी बी। तो ये जो हम हनी जो है वो कहां से लेके आते हैं, नेक्टर से। बी जो होता है वो नेक्टर से लेके आते हैं, ठीक है, नेक्टर से लेके आता है। एंड नेक्टर जो है कहां पर होता है, फूलों में होता है, फ्लावर्स में होता है। और नेक्टर को कहां लेके आता है हनी, नेक्टर अपने घर पर लेके आता है, अपने होम पे। एंड होम क्या होता है, होम को क्या बोले जाते हैं, हनी बी का बीहाइव बोले जाते हैं। ठीक है, और इसी नेक्टर से हमारा बनता है हनी। और हनी बनाने के लिए एक छोटा सा स्पून हनी बनाने के लिए बीज को कम से कम 4000 फ्लावर्स के पास जाना पड़ता है। ठीक है, और हनी बी जो होता है वो किसी को काटता तो है, पर वो कभी खुश नहीं होता किसी को काटने के बाद, क्योंकि तुरंत उसके बाद वो मर भी जाता है। ठीक है, एंड हनी बी जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 में वॉकर बी, जो बहुत मेहनत करता है, दिन भर 400 फ्लावर के पास जाके वो सेट लेके आना, ये सब करता है। एंड उसकी बात है ड्रोन, ड्रोन यानी कि किंग है ना, किंग ऑफ हनी बी को हम ड्रोन बोलते हैं, और जो कुछ नहीं करता है, दिन भर चुपचाप से बैठा है। एंड क्वीन होता है, एंड क्वीन जो सिर्फ अंडा ही देता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हनी बी। और हनी बी का बॉडी पार्ट 3 भाग में डिवाइड हुआ है ना, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, है ना। एंड हेड में जो हमारा जो वहां पर जो फीलर्स है, आईज है, ये सब हमें हेड में देखने को मिलता है। एंड मिड पोर्शन में यानी कि थोरैक्स में हमें उनका छोटा छोटा 2 पंख और 6 फीट देखने को मिलता है। एंड एब्डोमेन में हमें स्टिंग देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस मच फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ हम मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा कि ये जो है आप लोग को एक बार अच्छे तरह से पढ़ना है और वीडियो को आप लोग को अच्छी तरीके से देखना है। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।